Assalamu alaikum dear students. I welcome you to the course of Artificial Intelligence and lecture number 31. First of all, we will go through the previous lecture and then we will continue from there. In the last lecture, we understand unsupervised learning and we understand that there are naturally ways that we are using unsupervised learning as the kids are learning without any guidance, and there are animals that they are learning from different situations and different things, and we use this technique. We try to capture this technique and then make it mathematically and to make some algorithm out of it and then use it. There were multiple approaches for unsupervised learning, and one of it is called SOM, self-organizing maps. We had some introduction with it, understanding of it, what it is, how it is working, and what the algorithm is, and then we have an example of it using this SOM algorithm on some data set, and then we try to understand how it is working. And there are different fields, there are different applications where SOM can be applied and can be used, where we want to make clusters, different data or items. Then in that situation we can use self-organizing map, or any other data that we cannot label it, we can use self-organizing map for making classes in it, or to identify the features in the data. So today we will continue with some new topics, and that is called genetic algorithm. We will understand what genetic algorithm is, the basic idea behind it, and then we will understand what genetic algorithm requirements are, what we need for it, and then we will also understand theory of evolution, because genetic algorithm is dependent on theory of evolution. So a little bit of idea how it is working. Then we will understand and learn some strengths of genetic algorithm, some positive aspects of genetic algorithm, and also some weaknesses, where it is not going to work, in which kind of situation genetic algorithm has some problems. So we will understand all these things in today's lecture. So what genetic algorithm is? Genetic algorithm were formally introduced in the United States in the 1970s by John Holland at University of Michigan. ये एक प्रोफेसर थे, इन्होंने इस पे काम किया था कि क्यों ना हम जिस तरह जेनेटिक एल्गोरिथम काम कर रहा है, जिस तरह जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं एक से दूसरे में और उसकी कोई थ्योरी है उसके बिहाइंड, तो क्यों ना उसको हम किसी तरीके से मशीन्स के अंदर ले आएँ, वो उसका एक एल्गोरिथम बना लें और हम देखें कि क्या वो हमें अच्छे रिजल्ट्स देता है कि नहीं. तो इस पे 1970 से काम हो रहा है और ये अब काफ़ी मैच्योर हो चुका है. The counting price performance improvements of the computational system has made them attractive for some type of optimization. अब ये जिस तरह काम कर रहा होता है, जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस दे रहा होता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनके लिए ये बहुत अच्छे सॉल्यूशंस दे रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है. इस वजह से ये मेन स्ट्रीम रिसर्च की तरफ जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. इन पर्टिकुलर genetic algorithm work very well on mixed, continuous and discrete combinatorial problems. हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के कंटिन्यूस डेटा अगर हो, जो डिस्क्रीट हो, उन किस्म के डेटा के लिए, या जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कंबाइन हो, उनके लिए जेनेटिक एल्गोरिथम बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है. दे आर लेस सस्पेक्टेबल टू गेटिंग स्टक एट लोकल ऑप्टिमल देन ग्रेडियंट सर्च मेथड, बट दे टेंड टू बी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव. अब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करता है, क्योंकि ये लोकल ऑप्टिमा जो है, और जो ऑप्टिमाइज़ करते हैं सोल्यूशन को, लोकली ऑप्टिमाइज़ करते हैं. और अक्सर इस तरह होता है जब किसी प्रॉब्लम को हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो
ऐसा हो जाता है कि हम समझते हैं कि ये ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, लेकिन वो सॉल्यूशन किसी और जगह पर भी होता है और वो उससे बेहतर होता है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो स्टक हो जाते हैं वहाँ पर, वो ओवरऑल नहीं देख सकते कि और सॉल्यूशंस भी हैं इसके, और सॉल्यूशंस की तरफ वो नहीं जाता जब वो एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो इस सिचुएशन में ये जेनेरिक हो जाता है, ये डिफरेंट सॉल्यूशंस को ट्राई करता है और उनमें से जो बेहतरीन है उसको सेलेक्ट करता है। लेकिन इसमें यह है कि ये कंप्यूटेशनल प्रोसेस का बहुत लेंथी है, बहुत कम्प्लेक्स है, इस वजह से ये उस लिहाज से बेहतर नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन के लिहाज से ये बेहतर है। ये स्टक नहीं होता किसी एक सॉल्यूशन की तरफ जाते हुए। जेनेटिक एल्गोरिथम आर पर्टिकुलर क्लास ऑफ evolutionary algorithm that use techniques inspired by evolution biology such as inheritance, mutation, selection and crossover, also called recombination. Genetic algorithm actually एक particular class है, एक खास area है evolution theory का, वो हम देखेंगे आगे evolution theory में क्या कुछ है। evolution theory के एक कुछ ख़ास पोर्शन को वो फोकस करता है, और वो ख़ास पोर्शन क्या है? इनहेरिटेंस। जब हम पेरेंट्स से कोई चीज़ लेते हैं, अपने फोर फादर्स से कोई उनके कुछ फीचर्स लेते हैं, तो वो चीज़ें इस जेनेटिक एल्गोरिथम में काउंट होती हैं। फिर म्यूटेशन है, म्यूटेशन का मतलब ये है कि कोई चेंजेस आ जाएं, उन वैल्यूज़ में कोई सडन चेंजेस आ जाएं, वो है, उसकी परसेंटेज बहुत लो होती है, उसके जो चेंजेस के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, हम रख सकते हैं उसको, नॉर्मली होते भी कम हैं, इस वजह से म्यूटेशन जो है वो बहुत कम असरअंदाज होती है। फिर सिलेक्शन है, कौन से सिलेक्शन का मतलब ये है, हम आगे अगर जाकर देखेंगे कि कौन से वैल्यूज़ हैं जो सेलेक्ट होते हैं, कौन से ऑफस्प्रिंग हैं जो सेलेक्ट होते हैं फ्यूचर के लिए, कि ये फ्यूचर के ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट करें। फिर उसके बाद क्रॉस ओवर होता है, मुख्तलिफ जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो कंबाइन होते हैं, या पेरेंट्स कंबाइन होते हैं और फिर वो ऑफस्प्रिंग जनरेट करते हैं। इसको हम रिकम्बिनेशंस भी कहते हैं, जब हम कंबाइन करते हैं डेटा को। व्हाट इज़ जेनेटिक एल्गोरिथम? अगर हम स्पेसिफिक क्वेश्चन करें तो उसके आंसर में क्या होगा? जेनेटिक एल्गोरिथम आर implemented as a computer simulation in which a population of abstract representation called chromosomes or the genotype or the genome of a candidate solutions called individuals, creature or phenotypes to an optimization problem evolves towards better solution. अब यहाँ पर हमारे पास तीन बेसिक चीज़ें डिस्कस हुई हैं। एक ये है कि हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट होता है पूरी पॉपुलेशन का, हम पूरी पॉपुलेशन से कुछ स्पेसिफिक डेटा सेलेक्ट करते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पूरे डेटा को। फिर हम करते क्या है कि वो एक सोल्यूशन की तरफ हम उसको लेकर जाते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो एक डिफरेंट सोल्यूशन हैं, उनमें से हम किसी एक सोल्यूशन की तरफ लेकर जाते हैं और उनमें से हम वो वाला सेलेक्ट करते हैं जो सबसे बेटर हो, जो सबसे बेहतरीन हो। ट्रेडिशनली सोल्यूशंस आर represented in binary as string of zeros and ones, but other encodings are also possible. हमारे पास डिफरेंट किस्म के इनकोडिंग्स हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम 0 से 1 के फॉर्म में अगर लेते हैं तो वो इजी होता है, हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। The evolution usually start from a population of randomly generated individuals and happens in generations. हम क्या करते हैं, एवोल्यूशन किस तरह स्टार्ट होता है, किस तरह वो चेंजेस स्टार्ट हो रही होती हैं, वो इंडिविजुअल में स्टार्ट हो रहे होते हैं और वो रैंडमली सेलेक्ट होते हैं। वो वैल्यूज़ जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो रैंडमली सेलेक्ट होते हैं और फिर उनमें वो चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं।
In each generation, the fitness of every individual in the population is evaluated. हर एक जनरेशन के अंदर हर इंडिविजुअल की फिटनेस चेक की जाती है क्योंकि वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. मल्टीपल इंडिविजुअल्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द करंट पॉपुलेशन, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीपल इंडिविजुअल्स सेलेक्ट होते हैं. जो पॉपुलेशन हम सेलेक्ट करते हैं कि ये स्पेसिफिक पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ से फिर हम इंडिविजुअल्स उठाते हैं और वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं आगे. सेलेक्टेड फ्रॉम अ करंट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन देयर फिटनेस. अब वो जो इंडिविजुअल्स हम सेलेक्ट करते हैं वो फिटनेस की बेस पे होते हैं. वो उसका मतलब क्या है, हम आगे जाकर जब इवोल्यूशन थ्योरी देखते हैं तो उससे हमें और समझ आ जाएगी. एंड मॉडिफाइड, recombined and possibly mutated to form a new population. अब हमने जो इंडिविजुअल सेलेक्ट किए थे एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन से जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे एक जनरेशन को, तो वो होता क्या है उनके साथ, वो मॉडिफाई होते हैं, उनमें चेंजेस आते हैं, या तो वो चेंजेस जो हैं वो कंबाइनिंग दो डेटा को आपस में कंबाइन करते हैं या वो आपस में मिलते हैं, तो होता ये है कि वो चेंज हो जाते हैं, उसके ऑफस्प्रिंग जो हैं वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि वो किसी एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, अब वो दो को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. और फिर पॉसिबली उसमें म्यूटेशन भी हो सकती है. म्यूटेशन कोई ऐसी चेंज जो ना एक भी पेरेंट्स में से ना हो, मतलब वो दोनों से मुख्तलिफ हो, और फिर वो एक नई पॉपुलेशन को जनरेट करती है. अब इन नई पॉपुलेशन आगे जाएगी और वो फिटनेस की बेस पे हो रहा होता है. द न्यू पॉपुलेशन इज देन यूज इन द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द एल्गोरिथम. अब नई पॉपुलेशन जो आई है वो नेक्स्ट आइटरेशन में यूज हो रहा होगा उस एल्गोरिथम के. कॉमनली द एल्गोरिथम टर्मिनेट्स व्हेन आइदर अ maximum number of generation has been produced or a satisfactory fitness level has been reached for the population. अब ये आइट्रेशन जो है ये कब तक चलती रहेगी, या तो ये कि नंबर ऑफ जनरेशन पे डिपेंड करे कि हम चाहते हैं कि हमारे पास कितनी जनरेशन्स हों, कितने बार ये लूप चले तो कितने जनरेशन जनरेट होने चाहिए, और या ये हो कि हम ये देखें कि जब फिटनेस लेवल एक लेवल तक पहुंच जाए, हम कहें कि अगर हमने फिटनेस फैक्टर रखा हुआ है फॉर एग्जांपल 100 और हम स्टार्ट करते हैं फिटनेस लेवल 10 से, तो जब हम 100 पर पहुंच जाते हैं तो हम लूप को बंद कर दें, हम एल्गोरिथम को स्टॉप कर दें. इफ द एल्गोरिथम हैज टर्मिनेटेड ड्यू टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरेशन, a satisfactory solution may or may not have been reached. अब अगर हम स्टॉप करते हैं जनरेशन की बेस के ऊपर कि अगर 10 जनरेशन्स के बाद हम देखना चाहें कि क्या रिज़ल्ट हैं, तो उस सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है कि हम किसी सोल्यूशन की तरफ पहुंच जाएं, क्योंकि हम जनरेशन की बेस पे स्टॉप कर रहे हैं. हम ये नहीं कि फिटनेस की लेवल पे या सोल्यूशन की लेवल पे कि अगर सोल्यूशन मिल जाए हमें तो हम स्टॉप कर दें. तो इस वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सोल्यूशन मिल जाए अगर तो हम जनरेशन की बेस पे एल्गोरिथम को चला रहे हैं. अब हम थोड़े से जो बेसिक्स हैं जेनेटिक्स के उसको देखते हैं. क्रोमोसोम्स देखते हैं, जीन्स और जीनोम्स देखते हैं कि वो क्या है. क्रोमोसोम क्या है, वो डेटा जो हमारे पास कंबाइन होता है. एक क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे जीन्स होते हैं और वो जीन इंडिविजुअल वैल्यूज़ जो हैं उसको हम कहते हैं कि ये जीन है. और जब हम सारे जीन्स सारे क्रोमोसोम्स को कंबाइन करते हैं तो उसको हम जीनोम कहते हैं. तो हर एक ह्यूमन के अंदर डिफरेंट किस्म के जीनोम होते हैं और हर एक क्रोमोसोम है जो है वो बिलोंग करता है डिफरेंट जीन्स के साथ, और हर एक जीन जो है वो डिफरेंट फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. जीनोटाइप particularly set of genes in genome. अगर जो particular
सेट ऑफ जीन्स हैं किसी जीनोम के अंदर, तो हम इसको कहेंगे कि ये जीनोटाइप है। और फिनोटाइप क्या है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जीनोटाइप, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हेल्थी एटसेट्रा, दे आर कॉल्ड अ फिनोटाइप। एक्चुअली जब हम किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, किसी एक फीचर को देखते हैं जीनोटाइप के, तो जिस तरह हमारे पास स्मार्टनेस है, हेल्थीनेस है, ब्यूटीफुलनेस है, डिफरेंट किस्म के हेयर कलर और इस बहुत सारे और फीचर्स, तो इनको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास फिनोटाइप होंगे। जेनेटिक एल्गोरिथम रिक्वायरमेंट्स। A typical genetic algorithm requires two things to be defined. हम अगर एक सिंपल जेनेटिक एल्गोरिथम लेते हैं तो उसमें हमारे पास दो चीज़ों के का होना बहुत ज़रूरी है। A genetic representation of a solution domain, हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेशन हो जो के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सके। हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं किसी प्रॉब्लम को कि वो हम एल्गोरिथम में इनपुट के तौर पर दे सकें, वो हम किसी सोल्यूशन की तरफ लेकर जा सकें, तो वो रिप्रेजेंटेशन बहुत अहम है, वो किस तरह होगी। एंड अ फिटनेस फंक्शन टू इवैल्यूएट द सोल्यूशन डोमेन। और सेकंड, हम कैसे कहेंगे कि ये जो एक स्पेसिफिक वेक्टर है ये फिट है कि नहीं, इसमें कौन से फीचर्स हैं जो फिटनेस के लिहाज से बेहतर हैं। हम जिसको कहें कि ये एक वेक्टर जो है, ये एक वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ जो हैं ये दूसरी वैल्यूज़ से क्यों बेहतर हैं, मतलब वो कंपैरिजन जब हम आपस में करेंगे तो वो कोई फिटनेस फंक्शन हो, वो फिटनेस फंक्शन हमें हमारे पास अगर होगा तो तभी हम इस एल्गोरिथम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें अगर होंगी तो हम जेनेटिक एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। A standard representation of a solution is as an array of bits. Arrays of other type and structure can be used in essentially the same way. अब हमने बात की कि हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे सोल्यूशन को, तो वो सोल्यूशन किस तरह रिप्रेजेंट हो रहा होगा, वो हम एरे ऑफ बिट्स की फॉर्म में कर सकते हैं। हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं बिट्स की फॉर्म में, 1-0 की फॉर्म में। तो जब हम उसमें कन्वर्ट करेंगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा और वो हम एज अ एरे ले सकते हैं। द मेन प्रॉपर्टी दैट मेक्स दिस जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन convenient is that their pairs are essentially the main property that makes this genetic representation convenient is that their parts are easily allied due to their fixed size. The facilitates simple crossover operation. इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब हम कन्वर्ट करते हैं बिट्स की फॉर्म में, तो क्योंकि उनका साइज़ एक है, 0 या 1 है, या अगर हमने कोई रेंज रखा हुआ है तो वो फिक्स साइज़ है। तो क्योंकि वो साइज़ फिक्स है, तो जब हम इसको आपस में चेंज करेंगे, आपस में मिक्स करेंगे, तो उससे वो जो डिफरेंस है वो ये नहीं बनेगा कि एक वैल्यूज़ एक टाइप की हैं और दूसरी टाइप की हैं, तो वो आपस में मिक्स कैसे होंगी, वो आपस में हम कैसे बताएंगे कि कौन सा टाइप अब होना चाहिए। तो क्योंकि टाइप एक होगी, उसकी रेंज और एक होगी, उसका साइज़ एक होगा, तो वो जो क्रॉस ओवर जो है, वो जो मिक्सिंग है, हम आगे जाकर देखेंगे क्रॉस ओवर का मतलब क्या है। लेकिन जब हम इसको आपस में चेंज करेंगे, वो जो फैसिलिटी है वो इस एल्गोरिथम के अंदर वो बहुत इजीली परफॉर्म हो जाएगा। वेरिएबल लेंथ रिप्रेजेंटेशन में आल्सो बी यूज, बट क्रॉसओवर इम्प्लीमेंटेशन इज मोर कम्प्लेक्स इन दिस केस। अब हम वेरिएबल लेंथ रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं आपस में कि अगर हम जो लेंथ है वो वेरिएबल रख लें, वो फिक्स ना हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हम जब अब क्रॉस ओवर करेंगे तो वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा। वो जब हम आपस में मिक्स करेंगे तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे कि कौन से साइज़ रखना चाहिए, और फिर हम उसकी जो कंपैरिजन करेंगे वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ट्री लाइक रिप्रेजेंटेशन आर एक्सप्लोर्ड इन जेनेटिक प्रोग्रामिंग। हम ट्री लाइक अप्रोचेस यूज़ करते हैं, जिस तरह हम ट्री में ट्रैवर्सर्स कर रहे होते हैं, सेम इसी तरह हम वही वाले अप्रोचेस यूज़ करते हैं रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। जब हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सॉल्यूशन को, तो उस सिचुएशन में हम वही वाले अप्रोचेस यूज़ करेंगे।
क्रोमोसोम कुड भी, अब हम क्रोमोसोम्स को ले सकते हैं बिट्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं, रियल नंबर्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं, परमुटेशंस ऑफ एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, हम लिस्ट ऑफ रूल्स भी ले सकते हैं, डिफरेंट रूल्स जो हमने एक्सपर्ट सिस्टम में पढ़ा था, क्लिप्स प्रोग्रामिंग में पढ़ा था। प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, डिफरेंट किस्म के हम एलिमेंट्स बना लें, और एनी डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर हो, ऑर्गेनाइज हो, किसी स्ट्रक्चरल वे में हो, तो वो भी हम ले सकते हैं। ये सारे रिप्रेजेंटेशन हैं क्रोमोसोम की। अब ये रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास क्या है, द फिटनेस फंक्शन इज डिफाइन ओवर अ जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड मेजर द क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेड सोल्यूशन। अब हमने सेकंड क्या देखा था, फिटनेस फंक्शन होना चाहिए हमारे पास। तो वो फिटनेस फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है जो डेटा की रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर, और उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि उसमें हम कैसे कहेंगे कि ये जो एक सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं ये दूसरे सेट ऑफ वैल्यूज़ से क्यों बेहतर हैं, उसकी क्या वजह है, या अगर वो बेहतर नहीं है तो उसकी क्या वजह है। द फिटनेस फंक्शन इज़ ऑलवेज प्रॉब्लम डिपेंडेंट। जो फिटनेस फंक्शन हम बनाएंगे वो हमेशा उस प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, वो स्पेसिफिक टू दैट प्रॉब्लम होता है। वो इस तरह नहीं हो सकता कि हम एक जेनेटिक एल्गोरिथम बनाते हैं, उसका फिटनेस फंक्शन लेकर हम किसी दूसरे प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर लें, उसका फिटनेस फंक्शन भी वही रख लें। हम इस तरह इस वजह से नहीं हो सकता कि एक तो डेटा तो फिर भी अगर सेम होगा, अगर हमने बिट्स की फॉर्म में दोनों फॉर्म में रखा होगा, लेकिन शायद के जो हम सोल्यूशन चाह रहे हैं वो डिफरेंट हो। फॉर इंस्टेंस वी वांट टू मैक्सिमाइज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन पुट इन knapsack of some fixed capacity। अब इस एग्जांपल में हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक नैपसैक, एक बैग है, इस एक रक्सक है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ रखना चाह रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स रखना चाहते हैं, और उसकी कैपेसिटी हम बढ़ाना चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो जाए। A representation of a solution might be an array of bits। अब अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं, वो उनको हम एज अ एरे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन उनकी एरे की फॉर्म में करते हैं, वेयर ईच बिट रिप्रेजेंट अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जहाँ पर हर एक बिट जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करे। एंड द वैल्यू ऑफ अ बिट 0 और 1 रिप्रेजेंट वेदर और नॉट द ऑब्जेक्ट इज इन द नैपसैक। अब 1 और 0 जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या वो ऑब्जेक्ट जो है वो उस बैग के अंदर है कि नहीं। तो अगर हम ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, जेनेटिक एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, तो सिचुएशन में फिटनेस फंक्शन क्या होगा, नॉट एवरी सच रिप्रेजेंटेशन इज वैलिड एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट में एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक। अब इस तरह भी हो सकता है कि हमारे पास कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, वो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसकी रिप्रेजेंटेशन हम 0 या 1 की फॉर्म में नहीं कर सकते। तो वो उस जो ऑब्जेक्ट है उससे, उस वैल्यू से जहाँ पर हम रखना चाह रहे हैं, वो जो बैग है उससे ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। The fitness of the solution is the sum of values of all objects in the knapsack if there are representation is valid और 0 otherwise। अब अगर हम उसमें सारे वो वाले वैल्यूज़ को ऐड करें, वो वाले वैल्यूज़ जो 1 की फॉर्म में हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये उसका फिटनेस फंक्शन है। हम सिर्फ उनको सेलेक्ट करेंगे जो 1 है, जो 1 के को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया कि जो बिट्स हैं वो 0 होगा या 1 होगा, और 1 वो होंगे जो वहाँ पर हम रख सकते हैं, वहाँ पर हम उसके ऑब्जेक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में या तो 1 अगर है तो 1 की फिटनेस हम देखेंगे कि वो फिटनेस फंक्शन हमारे लिए होगा। In some problem it is hard or even impossible to define the fitness expression। In these cases interactive genetic algorithm are used। अब कुछ सिचुएशन में हमारे पास फिटनेस फंक्शन
को डिफ़ाइन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से वहाँ पर इंटरैक्टिव जेनेटिक एल्गोरिथम यूज़ होता है। ये एक डिफरेंट टेक्निक है इसकी। ये आप एडवांस लेवल में जब जाएंगे तो वहाँ पर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल्स हैं और आपको मैंने बताया कि वो 1-0 की फॉर्म में है। तो हम करते क्या हैं, हम उसके फिटनेस देखना चाह रहे हैं फिटनेस फंक्शन के थ्रू। तो 1-0 जो है वो जो वैल्यूज़ हैं, हर ऑब्जेक्ट जो है वो एज अ इनपुट जा रहा है और वो फिटनेस फंक्शन उसको चेक करता है। अब वो फिटनेस फंक्शन करता क्या है कि वो उनकी रैंकिंग करता है और रैंकिंग करता है उनकी नॉर्मलाइजेशन की बेस के ऊपर, सबको वो नॉर्मलाइज कर देता है। बेसिक्स ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम। अब अगर हम सिंपल उसका एल्गोरिथम देखना चाहें स्टेप्स के अंदर कि वो क्या होगा, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम वर्क्स लाइक पॉपुलेशन इज क्रिएटेड विद अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्रिएटेड रैंडमली। एक पॉपुलेशन बनाई जाती है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है पूरे के पूरे ग्रुप को, और वहाँ से वो रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं। द इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशंस आर देन इवैल्यूएटेड। अब उसके बाद हर एक इंडिविजुअल को इवैल्यूएट किया जाता है। द इवैल्यूएशन फंक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्रामर एंड गिव्स the individuals a score based on how well they perform at the given task। अब इसके बाद हर एक इंडिविजुअल को कोई स्कोर दिया जाता है, कोई पॉइंट्स दिए जाते हैं और वो बेस्ड होते हैं उस टास्क के ऊपर कि अगर वो टास्क उसने सही परफॉर्म किया कि नहीं। तो ये उसके कुछ वैल्यूज़ होते हैं और ये कौन डिफ़ाइन करेगा, ये प्रोग्रामर डिफ़ाइन करेगा। 2 individuals are then selected based on their fitness। अब दो इंडिविजुअल सेलेक्ट किए जाते हैं और वो सेलेक्ट किए जाते हैं उसकी फिटनेस की वजह से। जो इनको वैल्यूज़ दिए गए हैं, जो इनको वैल्यूज़ असाइन हुए हैं, जो टास्क उन्होंने परफॉर्म किया है उसके बेसिस के ऊपर, द हायर द फिटनेस द हायर द चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। जिनकी फिटनेस सबसे ज़्यादा अच्छी होगी उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो सेलेक्ट हों। जिनको ज़्यादा स्कोर मिला है उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो सेलेक्ट हों। These individuals then reproduce to create one or more offspring, after which the offsprings are mutated randomly। अब इसके बाद उनके ऑफस्प्रिंग जनरेट होते हैं, उनको आपस में मिक्स किया जाता है, क्रॉस ओवर किया जाता है, और उनके ऑफस्प्रिंग जब जनरेट होते हैं तो उनमें या तो म्यूटेशन हो जाती है, वो डिपेंड करता है कितना फैक्टर के बेस पे हम म्यूटेशन रखते हैं, और वो ऑफस्प्रिंग 1 भी हो सकते हैं और 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दिस कंटिन्यूज अंटिल अ suitable solution has been found or a certain number of generations have passed, depending on the need of the programmer। अब ये एल्गोरिथम रन होगा तब तक जब तक वो कंडीशन फुलफिल ना हो। वो कंडीशन ये हो सकती है कि कोई सर्टन लेवल ऑफ फिटनेस अचीव हो जाए या कोई सर्टन जनरेशन्स के बाद हम स्टॉप करना चाहते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के ये क्या है एक्चुअली, जिससे जेनेटिक एल्गोरिथम इंस्पायर हुआ है। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ यूनिक एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू इट्स ऑफस्प्रिंग। हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं, उसके कुछ यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है। Offsprings are unique and have attributes from each parents। अब offsprings जो है वो हर पेरेंट्स से यूनिक एट्रीब्यूट्स इनहेरिट करता है, वहाँ से लेता है, क्योंकि कुछ उसमें फादर के साइड से फीचर्स आ रहे होंगे और कुछ मदर के साइड से आ रहे होंगे। Selective breeding can be used to manage changes from one generation to the next। अब अगर हम मैनेज करना चाहते हैं कोई ख़ास चेंजेस को, कि जो चेंजेस अगर हों बार बार या वो इम्प्रूव हो जाएं, तो फिर हमें सेलेक्ट करना होगा कोई स्पेसिफिक
कपल्स को, कोई स्पेसिफिक जनरेशन को। उसके बाद हम ये ब्रीडिंग जब करेंगे तो वो उस ब्रीडिंग को हम इम्प्रूव करते जाएंगे जितना ही साथ टाइम गुजरेगा। नेचर अप्लाइज सर्टन प्रेशर्स दैट काजेज इंडिविजुअल्स टू इवॉल्व ओवर टाइम। अब नेचर की तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचुरली कुछ चीज़ें फोर्स होती हैं जिससे बाज़ जो फीचर्स हैं वो इवॉल्व होते हैं, वो साथ साथ बेहतर होते जाते हैं, वो चेंज होते जाते हैं। एवोल्यूशनरी प्रेशर्स हम देखते हैं कि वो कौन से चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं एवोल्यूशन के ऊपर। एनवायरनमेंट, क्रिएचर्स must work to survive by finding resources like food and water. Environment बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है किसी भी क्रिएचर के ऊपर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, कि वो अपने लिए फूड फाइंड आउट करे, वो वाटर फाइंड आउट करे, रिसोर्सेज ढूंढे अपने लिए। तो ये सारी चीज़ें फोर्स करती हैं एक ख़ास किस्म के फीचर्स को जनरेट करने के लिए, जिसमें वॉकिंग है, जिसमें स्ट्रगल है, जिसमें कंपटीशंस हैं। अब हम देखते हैं कंपटीशन को। क्रिएचर्स विद इन द सेम स्पीसीज compete with each other on similar task. अब हम ये देखते हैं कि एक ख़ास ग्रुप के अंदर सेम क्रिएचर्स जो हैं, सेम क्रिएचर वो आपस में compete करते हैं एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। अगर तो फूड हासिल करना है तो हम एक स्पेसिफिक एनिमल्स के ग्रुप को देखते हैं, तो सब के सब फाइट करते हैं उस फूड को हासिल करने के लिए। राइवलरी, हमारे पास ये भी होगा कि आपस में वो compete करेंगे तो वो आपस में मुखालिफ होंगे एक दूसरे के। डिफरेंट स्पीसीज इफेक्ट्स ईच अदर बाय डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशंस, हंटिंग, और इनडायरेक्टली बाय फाइटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज। हम देखते हैं नेचर में कि डिफरेंट जो स्पीसीज हैं, डिफरेंट जो क्रिएचर्स हैं, वो या तो कभी डायरेक्टली आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं स्पेसिफिक रिसोर्सेज के लिए, ताकि वो लीडर बन जाए, वो आगे बढ़ जाएं। और ऐसा भी होता है कि अगर वो आपस में इस तरह ना करें तो वो जब एक टारगेट तक पहुंचने के लिए भी वो कोशिश करते हैं कि वो पहले पहुंच जाए। तो डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं और हर एक में वो कंपटीशन हो रहा होता है स्पीसीज के दरमियान। Natural selection. Creatures that are not good at completing tasks like hunting have fewer chances of having offsprings. अब ये हमें पता है कि नेचुरली कौन से क्रिएचर्स सेलेक्ट होते हैं जो अपने ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट करते हैं। वो होते हैं जो फूड, जो बेसिक नीड है पहले वो हासिल कर लें। अगर तो वो सेहतमंद है, वो फूड लेते हैं, वो फूड के लिए जो स्ट्रगल है उसमें वो जीत जाते हैं। अगर हम एनिमल्स के केस में देखें तो वही आगे जाकर उनके ही ऑफस्प्रिंग जनरेट होंगे। तो इसका मतलब ये कि नेचर उनको सेलेक्ट कर रहा है, नेचुरल सिलेक्शन है। क्रिएचर्स दैट आर सक्सेसफुल इन कंप्लीटिंग बेसिक टास्क्स आर मोर लाइकली टू ट्रांसमिट देयर एट्रीब्यूट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, सिंस देयर विल बी मोर creatures born that can survive and pass on these attributes. अब होगा इसी तरह के ये जो क्रिएचर्स बेहतर हैं, जो फाइट कर सकते हैं फूड के लिए, उनके ऑफस्प्रिंग में भी फिर वही वाले फीचर्स होंगे और वही आगे जाकर ट्रांसफ़र होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वीक है वो रहते जाएंगे और जो स्ट्रॉन्ग है वो उनकी जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी। ये एक बेसिक है एवोल्यूशन थ्योरी का, और इसी को हम देखते हैं तो यही हमारे लिए वो फिटनेस फंक्शन है। जेनेटिक एल्गोरिथमिक प्रोसेस, पोटेंशियल सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम डोमेन आर एनकोडेड यूजिंग मशीन रिप्रेजेंटेशन बिट स्ट्रिंग्स दैट सपोर्ट वेरिएशन एंड सिलेक्शन ऑपरेशन। अब हम देखते हैं कि जेनेटिक एल्गोरिथम के लिए भी हम सेम इसी तरह हम कोई पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं और उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन करते हैं मशीन रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। मैटिंग एंड म्यूटेशन ऑपरेशन प्रोड्यूस न्यू जनरेशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम पेरेंट
इनकोडिंग्स। अब हमारे पास अगर तो कोई पॉपुलेशन है तो हम उनके आपस में मिक्सिंग करते हैं, वो उस मिक्सिंग से हम नए ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, नया डेटा बनाते हैं, नए सेट बनाते हैं जो कि हमें सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएगा। फिटनेस फंक्शन जज द इंडिविजुअल्स दैट आर बेस्ट सूटेड, फॉर एग्जांपल मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम सोल्यूशन फॉर सर्वाइवल। फिटनेस फंक्शन ये देखेगा कि कौन से पेयर्स हैं, कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो बेहतर हैं, जिनके ऑफस्प्रिंग्स जनरेट होने चाहिए। जिस तरह नेचर में हमने नेचुरल सिलेक्शन में देखा कि वही आगे बढ़ते हैं जो पावरफुल हैं, जो स्ट्रांग हैं, क्योंकि वो फूड हासिल कर सकते हैं और उन्हीं के ऑफस्प्रिंग आगे जाएंगे और उनमें भी वही फीचर फिर होंगे। सेम इस तरह हम अगर एल्गोरिथम की फॉर्म में देखना चाहें तो हम वो फिटनेस फंक्शन के थ्रू देखेंगे। Initialization, initial population must be representative sample of the search space। अब हम जिस एरिया में जहाँ पर हम सोल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा हो उस पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई इनिशियली कोई वैल्यूज़ लेंगे। रैंडम इनिशियलाइजेशन कैन बी अ गुड आइडिया इफ़ द सैम्पल इज़ लार्ज इनफ। अगर हमारे पास बड़ा सैम्पल है जहाँ से हमने डेटा सेलेक्ट करना है तो हम रैंडमली कोई भी वैल्यूज़ ले लेते हैं। रैंडम नंबर जनरेटर कैन नॉट बी बायस्ड। अब हमें ये पता है कि जो रैंडम नंबर जनरेट होता है वो बायसिंग नहीं करता, वो एक ख़ास एरिया से सारा डाटा नहीं लेता, वो रैंडमली सेलेक्ट कर रहा होता है, इस वजह से वो सारे फ्लेवर्स आ जाएंगे पॉपुलेशन के अंदर जब हम सिलेक्शन कर रहे होंगे। कैन री यूज़ और सीड पॉपुलेशन विद एग्जिस्टिंग जीनोटाइप बेस्ड ऑन एल्गोरिथम और एक्सपर्ट ओपिनियन और प्रीवियस इवैल्यूएशन साइकिल्स। अब हम रीयूज़ कर सकते हैं, हम दोबारा उस पॉपुलेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है जीनोटाइप के ऊपर और वो इस पे भी डिपेंड करता है कि जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कहते हैं इस स्पेसिफिक पॉपुलेशन के मुतालिक, या हम ये भी देखते हैं कि जो पिछले एवोल्यूशन साइकिल्स थे उनमें कौन से पॉपुलेशन जो था वो बेहतर था, कौन से वैल्यूज़ जो थे वो बेहतर थे, हम उसके बेस पे भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अब एवोल्यूशन किस तरह होगा? ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी सीन एज कैंडिडेट सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। अब हर मेंबर जो है पॉपुलेशन का वो एक सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कर सकता है, हम इसको इस नज़र से देखेंगे। द फिटनेस फंक्शन डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ ईच सोल्यूशन। और अब फिटनेस फंक्शन जो है वो हर एक इंडिविजुअल को चेक करेगा कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसका लेवल क्या है। द फिटनेस फंक्शन टेक्स अ phenotype and returns a floating point number as its score। जो फिटनेस फंक्शन है उसको हम इंडिविजुअल की वैल्यूज़ देते हैं और वो उसके साथ फिटनेस वैल्यू साथ ऐड कर लेता है, उसका स्कोर ऐड कर लेता है। इट इज़ अ प्रॉब्लम डिपेंडेंट सो कैन बी वेरी सिंपल। ये हमारे लिए प्रॉब्लम डिपेंडेंट होता है, ये जो वैल्यूज़ हम ऐड करेंगे वो प्रॉब्लम डिपेंडेंट होते हैं। इट कैन बी अ बॉटलनेक इफ़ इट इज़ नॉट केयरफुली थॉट आउट। अगर हम ये फिटनेस फंक्शन सही नहीं बनाते, जो वैल्यू हम ऐड करते हैं फिटनेस को चेक करने के लिए, अगर तो वो हम हर एक के साथ ऐड कर रहे हैं तो जाहिर है वो सारे कैंडिडेट हो जाएंगे, हमें फिर कैसे पता चलेगा कौन सा बेहतर है। तो ये जो फिटनेस पॉइंट्स ऐड होंगे ये बहुत केयरफुली करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बॉटलनेक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सिलेक्शन फिर होगी इसके बाद। वांट टू गिव परफॉर्मेंस टू अ बेटर इंडिविजुअल्स टू ऐड टू अ मैटिंग पूल। अब हम ये करेंगे कि हम मैटिंग पूल बनाएंगे। अब उसके लिए हमें डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करेंगे कि हम किस तरीके से सिलेक्शन करेंगे। अब एक सिलेक्शन हम इस तरह भी कर सकते हैं, इफ़ एंटायर पॉपुलेशन एंड्स अप बीइंग सेलेक्टेड इट मे बी डिज़ायरेबल टू कंडक्ट ए टूर्नामेंट टू ऑर्डर इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन। अब अगर सारी पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं हम क्रॉस ओवर के लिए आगे नेक्स्ट जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स के लिए, तो उस सिचुएशन में
वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो हम उसका हल ये निकाल सकते हैं कि हम उसके आपस में टूर्नामेंट करवाते हैं और देखते हैं कि कौन से विनर हैं और उनको हम सिलेक्ट कर लें। और सेकंड क्या है, वुड लाइक टू कीप द बेस्ट इन द मैटिंग पूल एंड ड्रॉप द वर्स्ट। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जो बेस्ट हैं सिर्फ उनको सेलेक्ट कर लें और जो वर्स्ट हैं उनको ड्रॉप आउट कर लें। एलिटिज्म इज ट्रेड ऑफ विद सर्च स्पेस कंप्लीटनेस। अब हम ये भी देखते हैं कि जब हम रिमूव कर रहे होते हैं, हम जो वर्स्ट हैं उनको रिमूव करते हैं, तो वो किस लेवल पे हम कर रहे हैं। क्या ऐसा ना हो कहीं कि वो वहाँ पर हमारे लिए कोई सर्च अवेलेबल हो। हम कितने वैल्यूज़ लेते हैं जो कि हमें सिलेक्शन की तरफ लेकर जाए। एलिटिज्म इज ट्रेड ऑफ विच सर्च स्पेस कंप्लीटनेस। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो सर्च स्पेस है उसको हम कितना कंप्लीट रखना चाहते हैं। क्या हम उसके अंदर जो वर्स्ट केसेस हैं उसको भी रखना चाहते हैं, या हम सिंपल जो बेस्ट केसेस हैं उनको रखना चाहते हैं। ये डिपेंडेंट है, और ये भी डिपेंडेंट है हम उसमें से कितने रिमूव करना चाहते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, क्रॉस ओवर होगा। इन रिप्रोडक्शन द जेनेटिक कोड ऑफ बोथ पेरेंट्स आर कंबाइंड टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग्स। अब जेनेटिक एल्गोरिथम में दोनों के जो पेरेंट्स हैं उनके कोड को कंबाइन किया जाता है। अ क्रॉस ओवर हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द मैटिंग पूल। अब जो क्रॉस ओवर होगा वो मैटिंग पूल के ऊपर कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होता। वुड लाइक टू कीप 60-40 स्प्लिट बिटवीन पेरेंट कंट्रीब्यूशन। हम ये कर सकते हैं कि जो स्प्लिट है कितने वो पेरेंट्स से इनहेरिट होंगे, कितनी वैल्यूज़ इनहेरिट होंगे, वो हम डिफरेंट फैक्टर की बेस पे रख सकते हैं। 60-40 की बेस पे भी रख सकते हैं। अगर हम 95 और 5 का स्प्लिट रखते हैं तो उसमें ये होगा कि हम क्रॉस ओवर जो हम कर रहे हैं उसके कोई बेनिफिट्स नहीं ले रहे होंगे। अब क्रॉस ओवर किस तरह होगा, इफ़ वी हैव सेलेक्टेड 2 स्ट्रिंग्स। अगर हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स है, ए जिसमें सारे वैल्यूज़ 1 हैं और बी जिसमें सारे वैल्यूज़ 0 हैं, वी माइट चूज यूनिफॉर्मली रैंडम सेट्स पोजीशन 3 एंड ट्रेड बिट्स। अब हम कोई रैंडमली कोई बिट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हम चेंजेस शुरू करेंगे। और चेंजेस किस तरह होंगे कि हम थर्ड हमने सेलेक्ट किया और थर्ड के बाद हम चेंजेस करेंगे। तो ए का क्या था, 111, जो पहले सारे 1 थे। 3 के बाद हमने उसको बी के वैल्यूज़ रख दिए, और सेम इस तरह बी में हमारे पास पहले 3 वैल्यूज़ बी के हैं और फिर जो बाकी 2 हैं वो ए के रख दिए। दीज न्यू स्ट्रिंग माइट देन बी एडेड टू द मैटिंग पूल इफ़ दे आर फिट। अगर तो ये फिट हैं, अगर तो ये फिटनेस फंक्शन को फुलफिल करते हैं तो हम इसको मैटिंग पूल के अंदर रख देंगे, दोबारा रखेंगे, क्योंकि इनकी एक मरतबा सिलेक्शन के बाद इसका क्रॉस ओवर हो चुका है। अब इसके बाद आएगा म्यूटेशन। म्यूटेशन हैपन्स एट अ जीनोम लेवल रेयरली एंड नॉट गुड, एंड द जीनोटाइप लेवल बेटर फॉर द जेनेटिक एल्गोरिथम प्रोसेस। म्यूटेशन नॉर्मली जीनोम के लेवल पे हो रहे होते हैं और ये बेहतर नहीं होते। जीनोम आपको याद है जो पूरे हमारे पास जहाँ पर जीन्स होते हैं, जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो उसके लेवल पे हो रहे होते हैं। म्यूटेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी इन द जेनेटिक कोड। अगर तो हम कोई डाइवर्सिटी रखना चाहते हैं, हम जो डिफरेंस है हम डिफरेंट करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए म्यूटेशन बेहतर है। वैसे नॉर्मली ये बेहतर नहीं है। इन ह्यूमन म्यूटेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। ह्यूमन के केस में जो ये इंटेलिजेंस आई है, ये थ्योरी है कि ये म्यूटेशन की वजह से है, क्योंकि ये जो सडन चेंजेस आ रही हैं अचानक ब्रेन के अंदर, तो वो ये चेंजेस होने की वजह से वो ह्यूमन इंटेलिजेंट हो गए। एग्जाम्पल द ओकेजनल लो प्रोबेबली अल्टरेशन ऑफ अ बिट पोजीशन इन अ स्ट्रिंग। हम कोई फैक्टर रखते हैं जिस फैक्टर की बेस पे हम कोई एक बिट को चेंज कर देते हैं स्ट्रिंग के अंदर। ऑपरेटर्स सिलेक्शन एंड म्यूटेशन।
when used together give us a genetic algorithm equivalent to a parallel noise tolerant hill climbing algorithm. जब हम सिलेक्शन करते हैं और म्यूटेशन करते हैं तो वो जेनेटिक एल्गोरिथम जो है वो इक्विवेलेंट होता है नॉइज़ टॉलरेंट से और हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम जो हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं और उसकी केस में फिर जब हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन क्रॉस ओवर एंड म्यूटेशन प्रोवाइड ए इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट लूजिंग पॉपुलेशन डाइवर्सिटी एंड अवॉइडिंग सम ऑफ द पिटफॉल्स ऑफ ऑर्डिनरी हिल क्लाइंबिंग. जब हम ये तीनों काम कर ले तो इसके साथ हमें ये पता होता है कि जो पॉपुलेशन इनहेरिट हो रहा है इस वजह से हम वो पॉपुलेशन लूज़ नहीं करते, उनके कुछ फीचर्स हमारे पास रह जाते हैं. और ये भी है कि जो हिल क्लाइंबिंग के अंदर हम स्टक हो जाते हैं लोकल मिनिमा के अंदर तो उससे भी हम बच सकते हैं इस सिचुएशन में. रिप्लेसमेंट डिटरमाइन when to insert new offspring into the mating pool and which individuals to drop out based on fitness. अब जब हमारे पास offspring आता है तो वो क्या हम उसको रिप्लेस करें मेटिंग पोल में किसी और इंडिविजुअल के साथ, और अगर वो हम करते हैं तो वो किस बेस पे हम करेंगे, क्योंकि जब हम रिप्लेस करेंगे तो इसके बाद दोबारा हम सिलेक्शन करेंगे और फिर हम दोबारा क्रॉस ओवर करेंगे और फिर म्यूटेशन करेंगे. तो ये प्रोसेस जब दोबारा स्टार्ट होगा तो जब नया ऑफस्प्रिंग आएगा तो उसके वैल्यूज़ भी साथ ऐड अप होते जाएंगे. स्टेडी स्टेट इवैल्यूएशन कॉल्स फॉर सेम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन. सो ईच न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोसीड्स one at a time, so fit individuals can remain a long time. नॉर्मली जो हमारा सिंपल एल्गोरिथम है उसमें जो भी इंडिविजुअल्स है वो फिट है तो वो ज़्यादा देर पोल के अंदर रहेगा और वो पूल जिसमें सिलेक्शन हो रही है वो बार बार सेलेक्ट होता जाएगा. In general evolution, the offspring are placed into a new population with all other offspring. Genetic code only survive in kids. अब हम देखते हैं कि जब हम नॉर्मली देखते हैं जर्नल एवोल्यूशन थ्योरी को तो उसमें ऑफस्प्रिंग के साथ होते हैं, ना कि वो जो पहले पूल था उसमें आकर मिक्स हो जाते हैं. वो आगे जनरेट हो रहे होते हैं, नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल में जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा. अब जेनेटिक एल्गोरिथम को हम अगर सिंपल पॉइंट्स के अंदर करें तो किस तरह होगा. सेट टाइम t इज इक्वल टू 0, इनिशियलाइज पॉपुलेशन पी टी, हम कोई भी पॉपुलेशन लेते हैं टाइम t, वाइल टर्मिनेट कंडीशन नॉट मेट, अब हम वाइल लूप लगाते हैं. इवेलुएट फिटनेस ऑफ ईच मेंबर ऑफ पी टी, हम हर एक इंडिविजुअल की फिटनेस चेक करते हैं. सेलेक्ट मेंबर्स फ्रॉम पीटी बेस्ड ऑन फिटनेस, और फिर हम सिलेक्शन करते हैं. प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड पेयर्स, फिर हम उसके बाद क्रॉस ओवर करते हैं, उसके थ्रू हम ऑफस्प्रिंग जनरेट करते हैं. रिप्लेस मेंबर ऑफ पीटी विद बेटर ऑफस्प्रिंग, और फिर उसके बाद हम रिप्लेस करते हैं जो ऑफस्प्रिंग हमारे पास आता है जो वर्स्ट केस होगा उसके साथ हम चेंज कर देंगे, जो लो फिटनेस जिसकी होगी उसके साथ हम चेंज कर देंगे. तो बेसिकली हम सिंपल ये काम कर रहे होते हैं, हम फिटनेस चेक करते हैं हर एक इंडिविजुअल वैल्यू की, फिर हम सिलेक्शन करते हैं, फिर हम क्रॉस ओवर करते हैं और फिर हम रिप्लेस करते हैं. सिंपल ये स्टेप्स हैं हमारे पास, और टी यहाँ पर प्लस होता जाएगा और ये चेंज होता जाएगा. Why use genetic algorithm? They can solve hard problems, different किस्म के hard problems जो normally हम solve नहीं कर सकते, वो genetic algorithm के through हम solve करते हैं. Easy to inference genetic algorithm to existing simulation and models. GAR extensible, हम इसको extend कर सकते हैं, इसमें हम और values add
कर सकते हैं, इसमें हम पॉपुलेशन को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसमें हम फिटनेस फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, तो इस वजह से एक्सटेंड हो सकता है। GAR इजी टू हाइब्रिडाइज, हम इसको कंबाइन कर सकते हैं दूसरे एल्गोरिथम्स के साथ। GA वर्क बाय सैम्पलिंग, सो पॉपुलेशन कैन बी साइज्ड टू डिटेक्ट डिफरेंस विद स्पेसिफाइड एरर रेट्स। हम क्योंकि हम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं पॉपुलेशन के, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। यूज़ लिटिल प्रॉब्लम स्पेसिफिक कोड, हम प्रॉब्लम स्पेसिफिक कोड यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अब हम अगर देखते हैं ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम में। टू यूज़ अ जेनेटिक एल्गोरिथम टू सॉल्व द ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, वी कुड बिगिन बाय क्रिएटिंग अ पॉपुलेशन ऑफ कैंडिडेट सॉल्यूशंस। We need to define mutation, crossover and selection method to add in evolving a solution from this population. At random pick 2 solutions and combine them to create a child solution. Then a fitness function is used to rank the solution. For crossover, we might take 2 paths P1 and P2, break them at arbitrary points and define new solution, left 1 plus right 2 and left 2 plus right 1. For mutation, we might randomly switch 2 cities in an existing path. क्रॉसओवर हम कैसे करेंगे? हम 2 पाथ लेते हैं एक सोल्यूशन की तरफ, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, जब हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम लेते हैं। अब उनको हम क्रॉसओवर कैसे करेंगे? हम उनके किसी 2 लोकेशन से, हम उन जो एक पाथ है जो एक सिटी से दूसरी सिटी है और फिर आगे चलता जाता है, तो वो हम चेंज कर देते हैं आपस में, उन सिटीज़ को आपस में, उनके कंप्लीट पाथ को चेंज कर देते हैं। और म्यूटेशन क्या होगा? जब हम रैंडमली किसी 2 सिटीज़ को आपस में चेंज कर लें, किसी एक पाथ के रास्ते में जो एक सिटी आ रही है वो हम कम्प्लीटली चेंज कर दें। सेट अप ए पॉपुलेशन, अब हम पॉपुलेशन किस तरह बनाएंगे? फॉर अ जेनेटिक जनरेशन, क्रिएट M म्यूटेशन एंड ऐड देम टू द पॉपुलेशन, सब्जेक्ट म्यूटेशन टू पॉपुलेशन constant and determine their relative fitness. Create C crossover and add them to the population. Subject crossover to population constraints and determine their relative fitness. So, solving traveling salesman problem using genetic algorithm. Steps क्या होंगे उसके? First step क्या होगा? Create group of random tours. Store a sequence of numbers, parents. Second, choose 2 of the better solution, combine and create new sequence which is children's, and then problem here is city 1 replace in child 1. अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो city 1 को हमने चेंज किया है child 1 में, city 5 replace in child 2, और जो हमारे पास child 2 आ रहा है उसको हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। Modification needed. Algorithm must not allow repeated cities. Also, order must be considered. 1, 2, 3, 4, 5 is same as 3, 2, 1, 5, 4. Based upon these consideration, a computer model for n cities can be created. Gets quite detailed. हमारे पास अगर different cities हैं, एक को हमने ले लिया एक पेरेंट और दूसरे को हमने ले लिया दूसरा पेरेंट, और ये पाथ है एक सिटी से दूसरी सिटी के दरमियान। अब हम इसका क्रॉस ओवर कैसे करेंगे? हम इसको कंबाइन कैसे करेंगे? हम दोनों को कंबाइन करते हैं और देखते हैं कि कौन से लाइन हैं जो आपस में मिलते हैं। अब हम उनमें से ऑफस्प्रिंग जनरेट करते हैं रैंडमली। हमने कोई पाथ्स जो हैं वो सेलेक्ट किए इन दोनों की कम्बिनेशंस में से। अब हमने वो सिलेक्ट किया, वो उसका चाइल्ड बन गया। अब म्यूटेशन में क्या होगा? हम रैंडमली कोई भी एक जो पूरे जो जीनोम है उसको हमने चेंज कर दिया है।
chances of 1 in 50 to introduce a mutation to the next generation. The child fit it replace a parent or first parent. जो हमने चांस रखा हुआ है, जो हमने रेट रखा हुआ है, जिस रेट से चेंजेस होंगी वो 1 in 50 है. अगर तो वो सेलेक्ट हो जाता है तो उसमें हम म्यूटेशन करेंगे. अब हम GA जेनेटिक एल्गोरिथम के स्ट्रेंथ्स देखते हैं. Do well at avoiding local minima and can often times find near optimal solution since search is not restricted to small search areas. ये बेहतर है ऐसी सिचुएशन में कि ये लोकल मिनिमा में फंसता नहीं है, ये एक ख़ास एरिया में नहीं होता, ये पूरे के पूरे सोल्यूशन में देखता है कि कौन सा सबसे बेहतर ऑप्टिमल सोल्यूशन है. Easy to extend by creating custom operators. हम इसको easily extend कर सकते हैं. Perform well by global optimization. हम कोई global optimization method हम अप्लाई करें तो उससे ये हमारे लिए बेहतर परफॉर्मेंस करेगा. Work required to choose representation in conversion routines is acceptable. हमारे लिए इस पे काम करना होगा कि हम उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सोल्यूशन की किन वर्ड्स में करते हैं, वो हमारे लिए एक कन्वर्जन रूटीन हमें बनानी होगी, वो भी एक्सेप्टेबल है किस तरह हम उसको कन्वर्ट करते हैं. इसकी वीकनेसेस क्या है? डू नॉट टेक एडवांटेजेस ऑफ डोमेन नॉलेज. जो एक स्पेसिफिक डोमेन है उसका जो नॉलेज है वो यूज़ नहीं होता इसके अंदर. नॉट वेरी एफिशिएंट एट लोकल ऑप्टिमाइजेशन. फाइन ट्यूनिंग सॉल्यूशंस. जो लोकल ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जो सॉल्यूशन जाते हैं उसमें ये एफिशिएंट नहीं है, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते. रैंडमनेस इनहेरिट इन GA मेक देम हार्ड टू प्रिडिक्ट. सॉल्यूशन कैन टेक अ लॉन्ग टाइम टू स्टम्बल अपॉन. क्योंकि रैंडम इनहेरिटेंस है, रैंडम वैल्यूज़ हम लेते हैं स्टार्ट में, इस वजह से ये भी मुमकिन है कि हम सोल्यूशन की तरफ जल्दी ना आ जाएं और उस पर ज़्यादा टाइम लगे. रिक्वायर एंटायर पॉपुलेशन टू वर्क, टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड मेमोरी एंड मे नॉट वर्क वेल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस. और इसमें क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, हम ज़्यादा पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं, फिर उस सारे पॉपुलेशन में हम सिलेक्शन करते हैं और फिर उसके क्रॉस ओवर होते हैं और फिर नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती है जो दोबारा आगे चलते हैं. तो क्योंकि ये काम काफ़ी लेंथी है, इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ होते हैं. तो आज के लेक्चर को हम समराइज़ करेंगे. हमने देखा जेनेटिक एल्गोरिथम क्या है, बेसिक चंद स्टेप्स हैं, उसके अंदर हम फिटनेस चेक करते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद हम क्रॉस ओवर करते हैं, फिर हम म्यूटेशन करते हैं और फिर उसके बाद हम रिप्लेसमेंट करते हैं. जो ऑफस्प्रिंग आते हैं उसको हम रिप्लेस करते हैं. तो ये हमारे पास बेसिक जेनेटिक एल्गोरिथम है. उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी? हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी. फिटनेस फंक्शन चाहिए था और उसकी रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी. फिर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमने चेक की कि एक्चुअली थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में क्या हो रहा होता है और उसी से इंस्पायर है जेनेटिक एल्गोरिथम. फिर हमने आखिर में देखा कि जो स्ट्रेंथ्स हैं उसके जेनेटिक एल्गोरिथम के और जो वीकनेसेस हैं वो हमने डिस्कस किए. और हमने एक छोटी सी एग्जांपल भी देखी ट्रैवलिंग सेल्समैन की कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. जेनेटिक एल्गोरिथम अप्लाई करते हुए हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.